اس نے جو ہے کور کیا ہوا ہے. تو تمام کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو, اور بدترین کرپٹ حکمران جو ہے اس 5 سال کے اندر ثابت ہو چکے ہیں کہ ان سے بڑے کرپٹ, ان سے بڑے بددیانت, ان سے بڑے قربا پرور, ان سے بڑے مسلک پرور جو ہے کبھی ماضی میں نہ آئے تھے اور نہ مستقبل میں آئیں گے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس وقت حکومت کو اجلت ہے کہ کسی طریقے سے ہم لاک ڈاؤن کو ختم کریں, اس کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہیں. مقاصد یہ ہیں کہ کچھ ٹینڈر جو ہے وہ ابھی ٹی ایس کے مرحلے میں ہے PWD کے اندر. یہ لاک ڈاؤن ختم کروا کے پورا علاقہ جو ہے اس وائرس کے شکار ہو جائے, ان کو اس سے غرض نہیں, ان کو اپنے مال سے غرض ہے. ان کو میچور کروا کے اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے ٹینڈر کروانا چاہتے ہیں, اور کچھ CTSP کے ذریعے جو اپنے من پسندوں کو یہ نوازنا چاہتے تھے, اب لاک ڈاؤن ختم کر کے وہاں پہ ٹیسٹ انٹرویوز کروا کے اپنا من پسندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, چونکہ وائرس ہے. اب آپ نے دیکھا چائنا کے اندر دوبارہ یہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے, تو یہ ان حکومت کو اجلت ہے لاک ڈاؤن ختم کروانے کی. اچھا علیہ صاحب, یہ نرمی کے حد تک حالات خراب ہیں. میرے خود 2 ڈاکٹروں سے بات ہوئی جو ڈیوٹی پہ تھے وہاں پہ, صرف وینٹیلیٹر, جہاں آپ نوٹ کریں اس بات کو, سمیہ نگر میں افت زدہ اسکودر ساس لگی جو ہے, وہاں پہ جناب علی ایک بچی آئی جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی. صرف وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا میری مجبوری تھی, میں نے اس کو گلگت بھیجنا تھا کیونکہ میرے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھا. اب یہ وینٹیلیٹر جہاں سے آئے ہیں, یہ CM صاحب ہمیں تفصیل بتائے وہ کہاں رکھے ہیں. جہاں پہ ریڈ زون ہے وہاں تو مر گئی بچی, نہیں ملا اس کو وینٹیلیٹر. ڈاکٹر سے خود میری بات ہوئی ہے, کہتا ہے جناب میرے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھا, میں مجبور تھا. دوسری بات, آپ تعریف کر رہے تھے دنیور ہسپتال کی. دنیور ہسپتال سے آپ کو پتا ہوگا, میں ابھی ریٹائر نہیں ہوا تھا, وہ دنیور ہسپتال بن چکا تھا, اور اس CM میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس ہسپتال کی طرف بھی ایک آنکھ اٹھا کے دیکھے. آج ہم نے شور مچایا کہ جناب علی کورونا کے لیے کرنٹائن کے لیے فریاد جب ہم نے کیا تو یہ اس نے نہیں, انتظامیہ کو ہم نے مجبور کیا کہ جناب علی انتظامیہ نے اس ہسپتال کو اپنی ضرورت کے لیے ہسپتال کو وہاں اس کو تھوڑا سا انہوں نے جناب علی وہاں پہ بندوں کو رکھا ہے, ورنہ 10 سال سے تو وہاں پہ جناب علی گائے بیل وہاں باندھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, گائے بیل باندھے ہوئے تھے, اور آپ اس کی تعریف کریں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اس کی بدنیتی اور اس کی وہ چیزیں. دنیور اسپتال آج ہمارے پریشر پہ آ کر مجبوراً وہاں انہوں نے 7 کرنٹائن کے کمرے کھولے. نہیں, وہ اس میں یہ وسیل احتجاج کر کے وہاں پہ جو مریض گئے تھے ان کو انہوں نے نہیں دیا, پھر مجبوراً لے کے گئے, وہ بھی ایک قربانی ہے. ایک اہم ایشو سر تعلیمی مسئلہ ہے. اسامہ اور وہ جو مالک اجدر, ان دونوں کو ایوارڈ دیا جائے, چونکہ ان کی ناقص پالیسی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ دونوں جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے. اور کل جو سٹی ہاسپٹل کے اندر ایک ایمو اور میڈیکل جو سٹاف کے لوگ متاثر ہوئے ہیں, اس میں بھی اس حکومت کی نااہلی ہے, اس کے بھی ڈائریکٹ ذمہ دار حکمراں ہیں, ان کے بھی بہترین جو ہے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, کون وہ فیصلہ کرنا ہے؟ جناب علی اپنا ایک ایجنڈا ہے, ٹھیک, اس ایجنڈے کے مطابق یہ غلط جگہ میں پل بنا رہا ہے. جب یہ بات ہم نے وزیر سے شکایت کی, جب ہم نے چیف سیکریٹری سے کی, مطلب سارے بڑے بڑے فورموں پہ کی, تو آخر میں سب بڑوں نے ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ میں خود آپ سب کو پتہ, میں نے بھی اس علاقے کی خدمت کی ہے, چیف انجینئر میں ریٹائر ہوا ہوں, تھوڑا سا میرا بھی تجربہ ہے اس لائن پہ. کہا گیا کہ یہ بھی ایک پرانا انجینئر ہے, اس کو لے کے آپ ساتھ جائیں. سیکریٹری ورکس, چیف انجینئر, ان کا SC, ان کا XCR, ان کا SDO, ان کا وزیر سب تھے. میں ان کو ساتھ لے کر گیا, میں نے 3 سائٹس ان کو دکھائی, اور میں نے ان تینوں سائٹ میں بتایا, میں نے کہا بتاؤ ان تینوں سائٹس میں کہاں پہ ہے جو تم ہمیں بدنام کر رہے ہو کہ یہ مذہبی تعصب کر رہے ہیں. تینوں سائٹس میں شیعہ آبادی نہیں ہے جو ہم نے ان کو بتایا ہے. نمبر 1 میں آپ بتاؤں, چھموگر ایک گھر کے لیے پل بن رہا تھا, ہم نے کہا اس ایک گھر کے بنانے کی بجائے 35,000 کی آبادی ہے, یہاں آپ پل بنا دیں. جے یار آبادی اوشک انداز ہم نے سائٹ دکھایا. دوسرا, آپ سب کو پتا ہے یہ آپ کے ساتھ برج ہے, اس برج کا لاکھوں روپے ان کا مہینہ کرایہ دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے FWO کو کتنے سالوں سے دے رہے. اس کی بجائے ہم نے کہا پل یہاں بناؤ تاکہ تو ہمارا بجٹ وہ ہوگا, دوسرا اس پل سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. 2, تیسرا میں نے سائٹ دکھایا تھا, یہ آپ کا
नसरतुल इस्लाम के सामने एक लकड़ी का ब्रिज है, हमने कहा था थोपचार खाना, हमने कहा उस पुल लकड़ी के पुल के साथ वहां बनाओ। और तीनों जगह जो मैंने उनको दिखाई थी, आप मुझे बताएं वहां कोई शिया बेनिफिट लेता है? कोई शिया बेनिफिट लेता तो मुझे बताएं। तीनों जगह ऐसी थी जहां शिया आबादी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सूटेबल जगह थी। अब मुझे ये बताएं यहाँ इतनी ट्रैफिक है, इसको छोड़कर 10 कदम नीचे जाके अपनी जमीन जहाँ है और या अपने किसी पसंद की जमीन है उसको कमर्शलाइज करने के लिए पुल दे रहे हैं। यहाँ पुल बनाए ये जगह है, ठीक। अब रही आपकी बात, आपके सवाल 3-4 सवाल है। अब रही आपकी बात, उस वक्त हमारा ये एतराज था। अब रही 1 अरब पे 2 पुल आपके, उन्होंने कहा नहीं बन देंगे, मुश्किल से ये 2 पुल बनते हैं, लिहाजा आप ये 2 पुल बनाएं, तीसरे को छोड़ें। अब चूंकि इस स्कीम को जल्दी करने के लिए, अपने पावर के अंदर रखने के लिए इसने 1 अरब में 4 पुल डलवाए, जबकि कंसल्टेंट ने कहा 2 पुल बनेंगे, तो ये 4 पुल बनाते। इसलिए हमारा एतराज है ये नहीं बन सकेगा, और ये बाद में जाके 1 अरब को 4 अरब में रिवाइज कराना है। ये कि मैं आपको अमेरिका बताता हूँ, इसने रिवाइज कराना है, ये नोट करें मेरी बात। अगर ये प्रोजेक्ट रिवाइज न करवाए फिर आप मुझे जो सजा दें आप मुझे मंजूर है, मैं सबके सामने खुद से रिवाइज कराए को पास कराया तो नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे रास्ते इसके साथ साथ इसके पावर जो है उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि जनाब वाकई पावर, क्योंकि इस वक्त हफीज़ और रहमान की टोटली यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बदमाशी चल रही है। इवन कि इतना पावरफुल है कि उसने अपने हाउस को जो है बाईपास किया हुआ है, उसके जो मनस्तर हैं वो बाईपास हैं, इलेक्ट्रिक लोग जो हैं उनको इसने कोड्डे लाइन लगाया हुआ है। चंद जो इसके फरमाइशी लोग थे आज हुकूमत वो लोग चला रहे हैं शीरों के नाम पर। और करप्शन जो है इसकी मिसाल जो हफीज़ुर रहमान के दौर में हुई है, इसकी मिसाल माजी में भी नहीं और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह की करप्शन करने वाला बंदा कोई नहीं आएगा। आप देखें PWD के अंदर जितने बड़े ठेके हैं सब उठा के जो है इसने अपने बंदों को दिए हुए हैं। इवन अब ये जो कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें आप देखें ये जो आपके PPE हैं, PPE जो है इनका ठेका किसके पास है, इनके ओरिजिनल रेट क्या है और आपको कितने रेट पे मिल रहे हैं और इसके पीछे कौन कर रहा है, ये आपके सामने है। और इवन ये जो राशन वाला सिलसिला शुरू हुआ है इसमें भी इसने कुर्बापरवरी की इंतहा कर दी है। अब यहाँ पे राशन जब ये कोरोना वायरस का वबा आया उसके बाद चंद ऐसे लोगों को इसने एक्टिव किया है जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं था। अब यहाँ पे जो ही जब कोरोना वायरस का वबा आया उस दिन से इमामिया कोर्ट, अल मजलिस डिजास्टर मैनेजमेंट सेल और तंजीम अल फलाह इन्होंने अपने तौर पर अपने खिदमत शुरू किए। तब तक हुकूमत को कोई होश नहीं था, ना इनके पास कोई स्प्रे का कोई केमिकल मौजूद था। इन्होंने अब जिस दिन यहाँ पे वसाइल आ गए उसी दिन से इसने जो है इन तमाम को है साइड करके पता नहीं अजीब नामों से लोगों को सामने लाया है। तो ये सारा करप्शन है। अच्छा सर, हमारी बात हुई है बिल्कुल 0% जो है वो मुतमईन नहीं है। अब देखें निगर को इन्होंने रेड जोन करार दिया और निगर के हवाले से इन्होंने दानिस्तान चूँकि वो जो इमदाद इन्होंने लेनी थी उसके हवाले से निगर को इतना हाईलाइट किया, उसका इतना मीडिया ट्रायल किया गया कि अब निगर का कोई बंदा यहाँ गिलगित आए तो लोग उससे भागने लगते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बावजूद निगर को तो इतना बड़ा आफतज़दा एरिया है तो वहाँ हर घर को राशन मिलना चाहिए। चूँकि वो मुकम्मल लॉकडाउन पे है तो वहाँ टोटल कोई 1500 बैग इन्होंने राशन दिए हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर का आपने कहा बेशक इन्होंने एक मशीन तो वहाँ दी होगी लेकिन वहाँ पे वो वेंटिलेटर चलाने वाले लोग ही मौजूद नहीं हैं। वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं 30 बेड हॉस्पिटल वो तो बहुत बंगला बना हुआ है, वहाँ ना डॉक्टर है ना कोई सर्जन है ना कोई मेडिकल स्टाफ है। तो निगर के हवाले से इन्होंने बदनीति पर मुबनी जो एक मीडिया ट्रायल किया है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और सेक्रेटरी हेल्थ खुद ये कहते हैं कि मतलब अनकरीब जो है सेहत के हवाले से वेंटिलेटर के हवाले से हमारे पास एनेस्थीसिस्ट और हमारे पास सर्जन नहीं है, अनकरीब हम उसको फ़ाल नहीं कर सकते। और राशन के हवाले से जिस हवाले से आपने कहा नगर वाले मुतमईन हैं, तो उसमें एक चीज़ है वहाँ पे वहाँ की लोकल इंतज़ामिया और वहाँ की जो अंजुमन हुसैनिया नगर है, क्योंकि वहाँ पे एक ही सेक्ट मौजूद है, कोई दूसरी आबादी वहाँ पर नहीं है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी है।
गिलगित के हवाले से मैं आपको बताऊं, 3 डिवीज़न है हमारे गिलगित के। इसमें हमारा तहसील जुगलोट है, तहसील दनियोर और तहसील गिलगित। आपको पता है 2017 की जो आबादी है, जो सेंसस हुआ था, उसमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार नफूस पर आबादी तहसील जुगलोट की है और 1,10,000 के दरमियान 2017 के उस सेंसस के हिसाब से तहसील दनियोर की है और आपकी 3 लाख से ज़ायद की आबादी आपकी तहसील गिलगित की है और तहसील गिलगित की नफूस 3 लाख हैं। लेकिन उसके ऊपर हमारे ऊपर जो बर्डन है नॉन लोकल्स का, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पे रहते हैं और डिफरेंट आपके सिटीज़ हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे आके आबाद हैं, तो हमारी आबादी ज़िला गिलगित की 3 लाख की बजाय ये 6 और 7 लाख के दरमियान जाती है। और उसके हिसाब से अगर आप इस राशन की तकसीम इंसाफ को देखें तो जुगलोट की जो 50,000 नफूस की आबादी है, वहाँ पे 1760 के करीब जो है ना वहाँ पे राशन के थैले जाते हैं और जहाँ पे दूसरी साइड पे दनियोर की आबादी है 1 लाख नफूस पर आबादी, वहाँ पे 1440 थैले जाते हैं। और आपकी गिलगित की जहाँ पे आपके बकौल आपके डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं कि हमारी इतनी आबादी है, यहाँ पे बैरून ज़िले के लोग भी हैं और हमारे अपने मुल्क के दीगर सूबों के अफराद भी हैं और हमारे पास 2100-2200 थैले आते हैं। क्या ये अदल इंसाफ है? हम इसी के ऊपर रो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने खुर्शीद साहब ने ये कहा कि एक कमेटी की कोई आपके पास कोई आइडिया हो, इसके ऊपर आप एतमाद नहीं करते। उसकी वजह ये थी कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने अपनी कम्युनिटी के हवाले से बात की थी कि हमारी कम्युनिटी के जो ज़ैली हमारी कौंसलात हैं, अंजुमनें हैं, उस हवाले से आप लोग अंजुमन के सदूर के ज़रिए से करें ताकि ये शफाफ होगा और आपको हमारी कम्युनिटी की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं होगी। दूसरी कम्युनिटी के हवाले से हमने कोई उस पर जिम्मेदारी नहीं ली थी। मस्जिद का इमाम मैं आपका जवाब देता हूँ, आगे चल रहा हूँ सदर साहब, आपका जवाब मेरे पास है। इस जी। बात सुने कि उसमें मस्जिद इमाम इसको कंफर्म करे, अच्छा उसका नंबरदार इसको कंफर्म करे, अंजुमन का सदर नंबरदार करे। तो इस बात की जरूरत क्यों महसूस हुई कि आप मस्जिद इमाम की जो वेट करदा, जो उसकी कंफर्मेशन को एक सिपाही के जरिए, एक पटवारी के जरिए मस्जिद इमाम को उलमा को जलील करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसको अगर इस कमेटी को पहले बनाया जाता तो क्या होता? नहीं, उनको बाईपास किया गया है। असल मस्जिद इमाम ने जिसको वेरीफाई किया उसको राशन नहीं मिला। इसमें सारा जो है तहसील के अमले ने जिसको चाहा उसी को राशन पहुँचाया। एक बात इसमें मैं आगे बढ़ा के मुख्तसर आपके सवाल के जवाब में अपने उसमें ये आपको तफसील सारी बताई कि जनाब वाली सब डियन वाइज आबादी और सब डियन वाइज इनके जो थैले बनते क्लियर है एक बात। दूसरी बात जनाब वाली हमने इन राइटिंग, हमने चीफ सेक्रेटरी को इन राइटिंग हमने एहतिजाजी लेटर सबूत के साथ लिखा हुआ है कि जनाब इतने पैक तुम्हारे गए, उनमें से इतने इधर गए, इतने इधर गए, ये क्यों गए? हमने इन राइटिंग चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है सबूत के साथ। और आप क्या चाहते हैं हमसे सबूत? ठीक है जी, हमने लेटर लिखा है, ठीक है जनाब वाली। तो लिहाजा इस बात पे कोई वो नहीं है, सबूत हमारे पास है, हमने लिख के दिया है। आबादी आपके सामने इन्होंने बता दी, इन्होंने जनाब वाली आपके सिद्दीकी साहब ने पूरी तफसील बताई। अभी अगला जनाब वाली वो पूरा है से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है नहीं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ सारे डेवलपमेंट सारी चीज़ें उसके साथ मुंसलिक हैं, तो इन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं। जहाँ पे आपने एक बात की कि उन्हों को भी आप लोग माज़म बना रहे हैं कि भाई सोनी शिया, और हकीकतन ऐसा ही है। हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पुल जाके एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए या 2 किरदारों को बेनिफिट देने के लिए छमुंगर में उसको ले जाकर लॉन्च किया जा रहा है, तो हम क्या समझेंगे? क्या जरूरत थी? जहाँ पे इतनी थिक आबादी है, जो ओशकंदाज और जलावात हजारों की आबादी है, वहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। हमने कहा कि भाई ओशकंदाज में लाएं ताकि उसको लिंक करें और बगरोट वैली तक जो है ना यहाँ से इस्तेफादा हासिल हो। चीफ साहब ने पहले बता दिया कि इधर साइड राइट और लेफ्ट दोनों साइड, एक साइड पे इस्माइली कम्युनिटी,